اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت وبك لست، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورزقني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيل عسرتي، فاغفر لي خطيئتي یا ارحم الراحمین. حضرات، میرے محترم مخاطبین و ناظرین و سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان کے ایام چل رہے ہیں، وقت سحر ہے، دعا کا لمحہ ہے. میں نے آپ کے سامنے چند جملے دعا کے عنوان سے پیش کیے ہیں، جسے دعائے سحر کے نام سے جانا جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہر لمحہ دعا کرنے کا اپنا ایک الگ ثواب ہے، ایک الگ مقام ہے، ایک الگ مرحلہ اور مرتبہ ہے. لیکن بالخصوص دعا سحر کے وقت جب کی جائے، صبح کے وقت کی جائے، تو دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ہر مہینے دعا کی جائے اپنا ثواب ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اگر دعا کی جائے تو اس کا اجر کچھ اور ہوتا ہے. دعا کے لیے خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں اجابت کروں گا. اور قرآن مجید میں دعا کو عبادت کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے. اسی سلسلے میں گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے یہ فرمایا خالق کائنات نے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دعا کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا وہ لوگ جو ہماری اس عبادت سے روگردانی کرتے ہیں ان کو ہم جہنم کے حوالے کر دیں گے، وہ رسوا ہو کر کے وہ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. گویا بات کو بات سے ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دعا صرف ہماری ضرورت اور اقتضا نہیں ہے، بلکہ دعا اللہ کی عبادت کا نام ہے. دعا کے سلسلے میں الگ سے ایک تفصیلی گفتگو ہماری موجود ہے، جو حضرات دیکھنا چاہیں وہ اس کلپ کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں. لیکن میں صرف تمہیداً ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا دعائے سحر کے جملوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے، کہ انسان جب محشر میں روایات ہے، چہاردہ معصومین سے منسوب روایات میں، الدعاء عند اہل البیت میں، الدعاء عند اہل البیت نامی کتاب میں یہ روایت نقل ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ محشر میں جب انسان کے اعمال مجسم ہو کے سامنے آئیں گے تو اس وقت
सबसे नुमायाँ तौर पे चमकता दमकता और ताबनाक और रोशन एक अमल नज़र आएगा जो सारे अमाल में एक ताज की हैसियत रखता होगा। जब बंदा उसको देखेगा तो ये आवाज़ देगा, नमाज की जज़ा पा चुका, रोज़े का अज्र मालूम हो चुका, हज व ज़कात का बदला मुझे मालूम हो चुका। ये किस चीज़ का बदला है, ये किस अमल का बदला है कि जो इतना हसीन नज़र आता है, सारे बदलों और जज़ाओं से मुनफरिद नज़र आता है। तो उसे बताया जाएगा कि तुमने दुनिया में एक दुआ की थी, वो दुआ कबूल नहीं हुई थी, तो उस कबूल न होने वाली दुआ के बदले में जो अज्र के तौर पे तुम्हें सिला मिला है, वो ये बेहतरीन सिला है जिसको तुम देख रहे हो कि सारे आमाल की जज़ाओं से बिल्कुल मुमताज़ सिला है। वो बंदा हसरत करेगा, काश कि मेरी दुआ दुनिया में कोई भी कबूल न होती ताकि मुझे आखिरत में बेहतर से बेहतर जज़ा मिलती। बहरहाल हम दुआए सहर पढ़ रहे हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं। जो अय्याम माह मुबारक रमज़ान के आगे आ रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हम भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, और सब ये समझ के पढ़ें कि दुआ हमारी ज़रूरत नहीं है सिर्फ़, बल्कि दुआ अल्लाह की इबादत है। और इस दुआए सहर का पुरकैफ अंदाज से आगाज़ होता है। इसके जुमले यहाँ से शुरू होते हैं, या मफ़ज़ई इंद कुर्बती, ऐ वो खुदा कि जिसकी पनाह में मैं जाता हूँ जब मुझे कोई कर्ब होता है, जब कोई बेचैनी होती है, जब किसी परेशानी का सामना होता है, तो अपनी मुसीबत के वक्त तेरी पनाह में जाता हूँ। वया गौसी इंदा शिद्दती, और जब मैं शिद्दत व मुसीबत में मुब्तला हो जाता हूँ तो तेरी ही ज़ात को पुकारता हूँ। या ग़ियासल मुस्तगीसीन, ऐ फरियाद करने वालों की फरियाद को पहुँचने वाले। अमीरुल मोमिनीन ने दुआ कुमैल में हमें ये सलीका सिखाया है कि अपने रब को मुसीबत के वक्त ये कहते हुए पुकारो, या ग़ियासल मुस्तगीसीन, या ग़ियासल मुस्तगीसीन, ऐ वो खुदा कि जो फरियाद करने वालों की फरियाद को पहुँचने वाला है। हम तुझे इसका अहल पाते हैं कि तू अपने करम की वजह से किसी परेशान हाल को अपने बाब इजाबत से वापस नहीं लौटाता, दुआ कबूल करता है, लिहाजा अपनी हाजतें लेकर दरवाज़े इजाबत पे दस्तक दे रहे हैं। और परवरदिगार तू हमारी दुआ को कबूल करेगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं बल्कि इसका हमें यकीन है। और ये यकीन तेरे फजल की बुनियाद पे है, तेरे करम की बुनियाद पर है, जो तेरे सिलसिले में हमने सुन रखा है कि तू कितना करीम है, कितना गफूर है, कितना रहीम है। उस फजल व करम की वजह से हमें उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि तू अपने इस खाती बंदे को अपनी बारगाह से मायूस नहीं लौटाएगा और इस गुनहगार की दुआ ज़रूर कबूल करेगा। वबेकस्ता गस्तो, और परवरदिगार आलम तुझसे ही हम इस्तिगासा करते हैं, तुझसे ही फरियाद करते हैं। वबेकालुस्तो लालूज़ो बेसवाक, और परवरदिगार सिर्फ तेरी पनाह में जाना चाहते हैं, इसलिए कि कोई पनाहगाह नहीं है तेरे अलावा जो तेरे इस गुनहगार बंदे को पनाह दे सके। अगर तूने अपने बारगाह से रांदे बारगाह कर दिया तो कोई ज़ात नहीं है जो इस रांदे बारगाह रब्बानी को अपनी पनाह में ले सके। मौलाए कायनात ने दुआए कुमैल में क्या खूब फरमाया, वलई तशेरी, काश के मैं जानता होता। और मौला फरमाते हैं कि मन ली गैरुक असअलहु कश्फ ज़ुर्री व नज़रा फ़ी अमरी गैर कबूल का उज़री व इदखाल का या फ़ी साअतिन मिन रहमतिक। परवरदिगार कौन है मेरा तेरे अलावा, कौन है मेरा तेरे अलावा कि जिसकी पास हम जा कर के अपनी हाजतें रखें। कौन है, अगर तूने हमारे उज़्र को कबूल न किया, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र न किया तो हम कहीं का न रहेंगे। गैर कबूल का उज़री, तेरे अलावा कोई नहीं है जो हमारे उज़्र को कबूल कर सके और हमें नजात दिला सके। मन ली गैरुक,
कौन है तेरे अलावा क्या सलहू कशफ़ ज़ुर्री, कि जिससे अपनी मुसीबत और अपनी परेशानी और अपने ज़ुर्र व मस्कनत के दूर होने के बारे में सवाल कर सकें। वो सिर्फ तेरी ज़ात है जिससे सवाल भी होता है और उम्मीदें भी वाबस्ता होती हैं। ला अलूज़ु बिसिवाका वला अतलुबुल फ़रजा इल्ला मिनका, परवरदिगार आलम तेरे अलावा हम किसी से अपनी फ़रज और अपनी कुशादगी और अपनी आसानी के लिए सवाल नहीं कर सकते, कुछ मांग नहीं सकते, कुछ मुतालबा नहीं कर सकते। यकीनन हम तेरे गुनहगार बंदे ज़रूर हैं, मगर जैसे कि तूने ख़ुद कुरान मजीद में हमें दर्स दिया है वैसा ही करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम बस तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमारा ये अक़ीदा है कि तेरे अलावा कोई मददगार नहीं, कोई नासिर नहीं, कोई यावर नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, किसी को मुस्तहिक़ इबादत नहीं समझते और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। अगर हमने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया भी है, किसी से मदद का सवाल भी किया है, तो बस उससे किया है कि जिसको तूने वसीला बनाया है हमारे और अपनी ज़ात के दरमियान। अगर हमने अहले बैत से भी मुतालबा किया है, मदद मांगी है, अपनी दुआएं और हाजतें उनकी बारगाहों में लेके गए हैं, तो इसलिए नहीं कि उनको अलग हम मुनफरिद और मुस्तकिल और जुदागाना तौर पे तेरी ज़ात से हट करके मदद करने के काबिल मोहतरम शख्सियत समझते हैं। हम इसलिए उनके दरवाज़े पे जाते हैं क्योंकि वो तेरे वली हैं, तेरे नुमाइंदे हैं और तूने ही उनको हमारे और अपने दरमियान जंजीर इत्तिसाल के तौर पे करार दिया है। इसलिए कि हम मुमकिनात की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तुझ तक जा नहीं सकते, तू वाजिबुल वजूद है, सरहद मुमकिनात में आता नहीं है, लिहाजा तूने एक ऐसी मखलूक को बनाया जो इस मुमकिनात की दुनिया को वाजिब की ज़ात से मुत्तसिल कर सके। लिहाजा हम उनके दरवाज़े पे जा करके दस्तक देते हैं और वो हमारी सिफारिश तेरी बारगाह तक मुंतकिल करते हैं। वरना हमारा अक़ीदा कुरान की आयत पर था, है और रहेगा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस अली को हम पुकारते हैं मदद के लिए, जिस नबी को हम आवाज़ देते हैं मदद के लिए, वो अली और नबी भी यही कहते थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और उनकी तालीम करदा ये दुआ है जो हम अपनी ज़बान पे जारी कर रहे हैं कि वबिका लुस्तु ला अलूज़ु बिसिवाका वला अतलुबुल फ़रजा इल्ला मिनका फ़ाग़िस्नी फ़फ़र्रिज अन्नी या मन यक़बलुल यसीर याफ़ो अनिल कसीर। पस परवरदिगार हमारी मदद फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे, हमारे लिए फ़र्ज और कुशादगी के मराहिल आसान कर दे, मराहिल मुहैया कर दे, ज़मीना फराहम कर दे आसानियों के लिए। परवरदिगार आलम तू वो है कि जो थोड़े से अमल को कबूल कर लेता है, तू वो है कि जो कसीर ख़ताओं को मुआफ़ कर देता है। यकीनन इलाही आमालुना कलीला व हाजातुना कसीला, परवरदिगार आलम हमारे आमाल बहुत मुख्तसर हैं, हमारी हाजतों की फहरिस्त बड़ी तवील है, मगर तेरे लिए मासूम ने फरमाया है और हम उस मासूम के बताए हुए जुमले पर यकीन रखते हैं कि या मन यक़बलुल यसीर, तू वो है कि जो कम को कबूल कर लेता है, व याफ़ु अनिल कसीर, और बहुत ज़्यादा को मुआफ़ कर देता है। यकीनन गुनाहों का एक अंबार है जो हमारी पुश्त पे है और गुनाहों का वो बोझ हमारी कमर को तोड़े डाल रहा है, लेकिन तेरे करम की जो खुशगवार हवा है वो हमारे गुनाहों के बोझ को और वज़न को उड़ा के अपने साथ लेके जाती है। लिहाजा हमारी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। और क्या खूब मासूम ने तालीम दी हमें और दुआ का ये सलीका सिखाया है कि हम इस लहजे में और इन लफ्ज़ों में तुझसे बातें कर सकें। इलाही तुआमिलना बिफज़लिक वला तुआमिलना बिअदलिक या करीम, परवरदिगार हमारा जब हिसाब करना महशर में तो अपने फ़ज़ल की बुनियाद पे करना, अपने अदल की बुनियाद पे न करना, इसलिए कि हम जानते हैं कि परवरदिगार अगर तूने अपने अदल की बुनियाद पे हमारा मुहासिबा किया तो हम कहीं के ना रहेंगे। लिहाजा फ़ज़ल की बुनियाद पर हमारा मुहासिबा करना। परवरदिगार आलम तुझसे यही उम्मीद है, अगर तूने फ़ज़ल और करम के ज़रिए से हमारा मुहासिबा किया तो यकीनन हम उन आले मोहम्मद के साथ मशहूर हो जाएंगे कि जिनकी मोहब्बत का ज़िंदगी भर
दम भरते चले आ रहे हैं। परवरदिगार आलम, जब तू थोड़े से अमल को कबूल करने वाला है, कसीर ख़ताओं को माफ़ करने वाला है, तो तुझसे ये दुआ है कि वाफ़ो अनिल कसीर, परवरदिगार इक़बल मिन्निल यसीर वाफ़ो अनिल कसीर, हमारी तरफ से थोड़े से अमल को कबूल फरमा ले और हमारी कसीर ख़ताओं को माफ़ कर दे। बिलखुसूस इस माह मुबारक रमज़ान में तुझसे तेरी मोहतरम शख्सियतों का, जो तेरे महबूब हैं, उन शख्सियतों का वास्ता देकर दुआ करते हैं। रसूल अकरम का वास्ता, चहारदा मासूमीन का वास्ता, इमाम ज़माना का वास्ता, हमारे कलील अमल को कबूल फरमा ले और परवरदिगार आलम हमारे ऊपर अपनी कसीर रहमतें नाजिल फरमा दे। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, और तुझसे ये उम्मीदें इसलिए हम वाबस्ता किए हुए हैं कि तू गफूर भी है, तू रहीम भी है।